Good morning, dear students. How are you? I hope all are fine at home. Now your half yearly exam is coming. So today we will revise chapter 1 and 2 of DP. I already sent you video. If you want to watch anything, you can go through the video properly. So today we will discuss the questions and answers. First we will discuss about the question and answers of lesson 1. What is democracy and why democracy? Firstly we will know the meaning of what do mean by democracy. Describe the origin of the word democracy. We know very well democracy has its origins. It has taken the Greek word. It means democracy we have taken from which word? Greek word. Or what is the meaning of from which Greek word we have taken the word of democracy? Democratia. So what is the meaning of demos and cratia? Demos, what we can say that? Again, describe the origin of the word democracy. यानी कि democracy we have taken the word of Greek. Which Greek word? Democratia. Or what is the meaning of demos? Demos means people or cratia means rule. Demos means people and cratia means we can say that the rule. It means rule by the people. So यानी कि what is the definition of democracy? So it means rule by the people. I hope clear. What do you mean by the democracy? Again one question arises, इसी से questions और arises है कि what are the two types of democracy? What are the two types of democracy? Direct democracy और second indirect democracy. Direct democracy का मतलब क्या होता है कि where people directly taking participate in the decision making process of the government policies and programs. But in indirect form of democracy, it is not possible. People cannot take directly participate. How they are taking the participate? Through the representative. यानी कि those leaders we are choosing, with the help of these representatives we are taking participates. Clear? So it means in our country we have adopted the indirect form of democracy. Clear? Now next, what is a referendum? That word used in the during the we have discussed about the Pakistan point. यानी कि we can say that paragraph we have discussed. Referendum. What is the meaning of referendum? Referendum का मतलब होता है is a direct vote. What is the meaning of referendum? It is a direct vote in which the entire electorate to ask. क्या उससे पूछा जाता है? To ask, to either accept or reject a proposal. यानी कि which type they have asked, कि which type of proposal they ask. It means regarding any countries for making any law, for making any constitution या for making any government policies. और that referendum word used by in the Pakistan that time when जनरल परवेज मुशर्रफ उन्होंने क्या कहते हैं अपना प्रेसिडेंटशिप का एक्सटेंड किया था जो कार्यकाल उसके लिए लोगों को जबरदस्ती रेफरेंडम यानी कि इट इज ए डायरेक्ट वोट टू द एंटायर इलेक्टोरेट्स टू आस्क टू वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर्टिकुलर प्रपोजल और ये प्रपोजल किससे रिलेटेड हो सकता है मे बी रिलेटेड टू द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्लियर नाउ what do you mean by legal framework order कि what do you mean by legal framework order that was passed it was an order issued by General Pervez Musharraf in 2002 ये क्या था it was an order था एक आदेश था और it was passed by the General Pervez Musharraf in 2002 according to this legal framework what can do he यानी कि he could dismiss the national or provincial assemblies यानी कि national और provincial assemblies यानी कि president could dismiss that time clear so what do you mean by legal framework order it means that order was passed by the General Pervez Musharraf and who was the General Pervez Musharraf General Pervez Musharraf was the president of Pakistan or in which year it was passed in 2002 according to which order what could do that time president he could dismiss the national or provincial assemblies. I hope clear up to here. Okay. Which type of party system is there in China? In China, only one party system is there. How many party systems are there in China? Only one party. Or you know very well which party system? Chinese Communist Party. Which party? Chinese Communist पार्टी ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज पार्टी नेम तो व्हाट इज द आंसर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी
Which members are allowed to contest the elections in China? Which members, किन members को ही contest करने की यानी कि elections contest करने की permission है वहाँ पर? Only, मतलब यहाँ पर word use कर सकते हो आप, only the members of the Chinese Communist Party. Chinese Communist Party यानी कि those who are the members of the Chinese Communist Party और 8 other allies, या जो उनकी 8 पार्टी जो उनकी सहयोगी है, only these peoples can participate. Only Chinese Communist Party's members, you can say that, or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in which year? Elections held in China 2002, according to our book we are discussing beta. It was held in 2002 and 2003. Clear? And so that automatically which party formed the government here? Chinese Communist Party always formed the government. Clear? एक क्वेश्चन सब इससे और निकल के आ रहा है बेटा, क्या? Who appoints the president of China? जो प्रेजिडेंट ऑफ चाइना है उसको कौन अपॉइंट करता है वहां पर? तो द प्रेजिडेंट ऑफ चाइना इज अपॉइंटेड बाय 3000 मेंबर्स. कौन उसको अपॉइंट करते हैं प्रेजिडेंट को? 3000 मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. कौन उसको अपॉइंट करते हैं, कौन चूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं वहां पर? 3000 मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहां पर चाइनीज पार्लियामेंट, यानी कि चाइना की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ये क्वेश्चंस भी आ गए ना कि हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो हु कैन अपॉइंट? नेशनल पीपल्स कांग्रेस अपॉइंट द प्रेसिडेंट. और अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 3000 मेंबर्स. क्लियर? नाउ गो अहेड. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस फॉर इलेक्टिंग द president? After how many years does Mexico hold election? After every 6 years. They held the elections here how many years? 6. After every 6 year. Or what do you mean by what do you mean by PRI? I से क्या बना? Institutional Revolutionaries Party. Clear? क्या है ये Institutional Revolutionaries Party? It was a political party in Mexico. कहाँ पर है ये पार्टी? PRI मैक्सिको में. तो इट मीन्स हु इज विच पार्टी इज विनिंग द इलेक्शन हियर इन द मैक्सिको? ऑटोमेटिकली PRI. और फॉर विनिंग द इलेक्शंस व्हाट दे आर यूजिंग? दे आर यूजिंग द डर्टी ट्रिक्स एंड fraud and malpractices they are using for winning the election. So that's why that party formed the government here. Or after how many years they contest the election? Hold the elections, we can say that after every 6 years. Compare the democratic system in China with that in Mexico. क्या दोनों में डिफरेंस हम बता सकते हैं? मैक्सिको और चाइना का जो सिस्टम है, मैक्सिको और चाइना में क्या, एक आप रिकॉल करो इसमें. इट मीन्स एक तो इलेक्शंस का आप दे सकते हो. इन चाइना इलेक्शंस होल्ड आफ्टर एवरी 5 years. मैक्सिको इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 6 years. क्लियर? सेकेंड पॉइंट्स हम क्या डाल सकते हैं चाइना में? इन चाइना इलेक्शंस डोंट ऑफर एनी चॉइस. लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर. किसको वोट डालना? ओनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही जीतना है. ऑलवेज फॉर्म द गवर्नमेंट. तो इट मीन्स पीपल डजंट हैव एनी रियल चॉइस. इन मैक्सिको द पीपल सीम टू हैव ए चॉइस बट प्रैक्टिकली दे डोंट हैव एनी चॉइस. कहने को तो चॉइस है पर प्रैक्टिकली दे डोंट हैव एनी चॉइस. क्लियर? सेकेंड पॉइंट आप थर्ड इसमें क्या डाल सकते हो? पीपल हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी and the candidates approved by it. But in Mexico, there was no way the ruling party could be defeated even if the people were against it. So these 3 points you can write down in that questions. Now mention essential features of democracy. कि डेमोक्रेसी की क्या essential features है? हम कैसे कहेंगे कि डेमोक्रेसी फॉर्म कि ये characteristics होनी चाहिए? फर्स्ट, मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स. डेमोक्रेसी का सबसे है जो मेजर डिसीजंस हैं वो कौन लेंगे? इलेक्टेड लीडर्स लेंगे यहाँ पर. क्लियर? अब इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो पाकिस्तान में. क्या पाकिस्तान में इलेक्टेड लीडर्स जो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड, क्या वहाँ पर इलेक्टेड लीडर है जनरल प्रेसिडेंट? वो तो ज़बरदस्ती वाला काम है कि भी हम करवाना है तो आप मुझे एक्सेप्ट करो रेफरेंडम के थ्रू. यानी कि तो डेमोक्रेसी में क्या जो इलेक्टेड लीडर्स है जो हमारे बिहाफ पर जो हम उनको चूज कर भेजते हैं, दे आर टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस. क्लियर?
फिर सेकंड आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल competition. It means people are free to choose their representatives, but in the China and Mexico we can see people don't have the real choice, but in a democratic form of government people are having the real choice. It means they can choose their representatives. Clear beta? You can write down. थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या डाल सकते हो, 1 person 1 vote 1 वैल्यू. डेमोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 person 1 vote 1 वैल्यू, यानी कि जो अडल्ट सिटीजन्स है दे कैन कास्ट देयर वोट, चाहे आप पुअर हैं, रिच हैं, चाहे एडुकेटेड हैं, अनएडुकेटेड, सेम वैल्यू है. तो दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote 1 वैल्यू. आपको पूरा इसको इलोबरेट करके लिखना है इसके अंदर. क्लियर? फोर्थ पॉइंट, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. जो भी हम रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, यानी कि ऑल द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक दायरे में रहकर काम किया जाएगा कि रियली पीपल्स विल गेट द चॉइस. क्लियर? हाउ डज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. आप इसको कैसे इलोबरेट कर सकते हैं कि हाउ डज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. कैसे? आपको पता है बेटा, इन डेमोक्रेसी इफ़ वी आर टेकिंग एनी डिसीजन, वो किसके थ्रू लिए जा रहे हैं, कंसल्टेशंस एंड डिस्कशन, यानी कि सलाह मशवरा करके डिस्कस करके कोई भी पॉइंट बन रहा है. आफ्टर दैट व्हाट कैन डन इन ए डेमोक्रेसी, डिसीजंस मेकिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स. जब कोई डिसीजन लेंगे तो क्या होगा डेमोक्रेसी में, मैनी पीपल्स इन्वॉल्व्स, और इट मीन्स मैनी पीपल्स विल बी इन्वॉल्व, they will give their own decisions and they based on the, we can say the discussion and meetings will be held for taking any decisions. And second point, when a number of people put their heads together का मतलब when many peoples will gathered at one particular place, they will take any decision. So what will be happen here, टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन, यानी कि पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. जैसे हम 10 लोग बैठ के कोई डिसीजन लेंगे तो 9 लोगों को कोई बात पकड़ में नहीं आई, गलती है, लेकिन 10 नहीं बताते यहाँ पर हम मिस्टेक करने जा रहे हैं. तो इट मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन इम्प्रूव आवर मिस्टेक्स. हम उसको रिमूव कर सकते हैं, वहीं की वहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई ये गलती हमसे होने जा रही है, तो वी कैन रिमूव. थर्ड आप इसमें क्या डाल सकते हैं, द प्रोसीजर टेक्स टाइम. हालांकि डिसीजन में टाइम लगता है डेमोक्रेटिक में, बिकॉज मैनी पीपल्स आर गिविंग देयर आइडिया, सजेशन एंड डिस्कशन, and for that meetings also held, but there is a big advantage in taking time over important decision as it prevents one from being taking rash or irresponsible decision. टाइम तो लग रहा है पर इससे हमें क्या होगा, irresponsible decisions नहीं लिया जाएगा, यानी कि we will take the responsible decision, जो those that decisions will be welfare for the society. तो आप इसमें ऐसे एलोबरेट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस में. फिर है डिस्क्राइब द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आप इसमें लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी नॉट ए गुड फॉर्म, गुड नहीं बता रहे कि क्या है इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स है, आर्ग्यूमेंट्स हम डाल सकते हैं. आर्ग्यूमेंट फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आएगा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. क्यों? बिकॉज इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीडर्स आर कीप चेंजिंग, लीडर्स चेंज होते हैं, तो दैट्स वाई इट लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. क्लियर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. डेमोक्रेसी किसके ऊपर काम करता है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है. एंड पावर प्ले, तो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, यानी कि मोरलिटी के लिए कोई नहीं है. विनिंग द इलेक्शंस, नाउ डेज एवरीबडी इज यूजिंग द डर्टी ट्रिक्स फॉर विनिंग द इलेक्शन, तो यानी कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो गया फॉर विनिंग द इलेक्शंस. क्लियर. सेकेंड पॉइंट्स व्हाट यू कैन हियर, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि वो अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोगों को जानते भी नहीं है. जब जानते ही नहीं है तो उनके इंटरेस्ट क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन है, कैसे उसको रिमूव करेंगे. इट मीन्स दे डोंट नो द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल. तो इट मीन्स तो क्या होगा यहाँ पे, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, तो इससे कई बार गलत डिसीजंस लिया जाता है. फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसीज लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल competition, यानी कि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द करप्शन, तो इट लीड्स टू इलेक्ट्रल competition. Clear. Now next what you can write down here, it means democracy is not a magical solution for all the problems, such as it has not ended poverty in our country and in other parts of the country. सेकंड हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो बहुत एक अच्छा आर्ग्यू क्या है कि डेमोक्रेसी से हम सारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है. मतलब ये इससे हम जो कंट्री के अंदर जो है अराइजेज हैं, जो मेन मुद्दा है हमारी कंट्री में पॉवर्टी, उसको भी अभी तक हम रिमूव नहीं
कर पाएँ। क्लियर? तो आप ये पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो 5 पॉइंट। सेकेंड 12 क्वेश्चन कि वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी को हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, it is based on free and fair electoral system. Democracy is accountable to the people. It is more accountable form of government. It responds to the needs of the people. It means democracy will do work according to the needs of the people. Next, democracy enhance the dignity of the citizens. इन्हांस द डिग्निटी यानी कि सभी को यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी देकर सभी को इम्पोर्टेंस दे रहे। इन डेमोक्रेसी वी कैन सॉल्व ऑल द सोशल डिफरेंसेस in the democratic form of government, but in other form of government we cannot solve. So that's why it is good. And democracy is based on political equality. It means all rich, poor and educated and uneducated have equal rights here in a democratic form of government. That's why it is considered the best form of government. Next, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स आवर ओन मिस्टेक्स. अगर हमने कोई गलती भी कर दी तो यानी कि नेक्स्ट टाइम वी कैन रेक्टिफाई आवर मिस्टेक, हम अपनी मिस्टेक को रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. बट इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी कैन नॉट रेक्टिफाई मिस्टेक्स. क्लियर? नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है. आप एक तरफ हेडिंग बनाएंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड बनाएंगे नॉन डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में लिखेंगे हियर लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. नॉन डेमोक्रेटिक में हियर लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. हियर सेकंड, people democratic form of government, people are having the real choice, but in the non democratic form of government people don't have any real choice. Here you can write down people are having the freedom, they can express their ideas, views, because constitution is there in a democratic form of government, but in a non democratic form of government people don't have any constitution. They will do work according, who will take all the decisions? Only ruler will take the decisions. Here you can write down parliament is supreme in the democratic form of government. Here ruler is supreme because ruler is will take all the decision. So you can write down 4 and 5 points. क्या क्या differences है. Here people can choose their representatives, they can rectify their mistakes, or all the leaders will do work according to the needs of the people. क्लियर बेटा? यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो. आप इसमें भी कर सकते हो. डेमोक्रेटिक में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उधर 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपको देना है तो रूलर ही चूज करना, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द 13 क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर 1. You will, what will you do? You will learn and write these questions answer in the proper way. Okay? Dear students, now we will revise the second chapter, constitutional design. Better now, South Africa portions removed, yeah, we can say that deleted by the CBSE. Now, which topic will ask in that session? What do you mean by constitution and why do we need constitution? And he related to the only Indian constitution. We will now discuss about the South Africa constitution. So first we will discuss about the what is a constitution and why do we need a constitution. What do you mean by, first we will understand the concept of what do you mean by constitution. Constitution क्या है? Is a set of written rules. Is a set of written rules that are accepted by people living together. यानी it is a set of written rules and regulation and that are accepted by all the people. By all the people means what we can say that living together in a country. Here constitution is the supreme law. यानी कि country के अंदर सबसे ऊपर supreme किसको बोल रहे हैं? Constitution. Because all the rules and regulation where it is the mention in the constitution. तो यानी कि constitution is the supreme law that determines the relationship among living in a territory called citizens and also the relationship between the people. So you can write down one definition constitution. And now question arises, why do we need a constitution? कि constitution की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों ये लगा कि constitution होना चाहिए? First, it generates the degree of trust and coordinations that is necessary for different kinds of people to live together. ताकि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं कंट्रीज के अंदर उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे. अगर कोऑर्डिनेशंस नहीं बनेगा तो व्हाट विल बी हैपन हियर? सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी अराइजेस इन आवर कंट्री. तो यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस नहीं हो, एक जनरेशन यानी कि ट्रस्ट बना रहे आपस में, इसके लिए क्या जरूरी है?
कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो बेटा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, यानी कि हाउ विल गवर्नमेंट विल रूल, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगी, हु विल इलेक्ट दैट गवर्नमेंट एंड हाउ दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी मेंशन। सेकंड पॉइंट यू कैन राइट डाउन। थर्ड पॉइंट व्हाट विल यू राइट डाउन हियर, it lays down the limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are, यानी कि गवर्नमेंट कैन नॉट मिस यूज द पावर, उसमें लिमिट्स है कि यू कैन यूज दिस पावर, कि चीफ मिनिस्टर कैन यूज दैट पावर, प्रेसिडेंट कैन यूज दिस पावर, प्राइम मिनिस्टर कैन यूज दिस पावर, यानी कि ऑल द पावर्स लिमिट्स एंड इट इज गिवन द इवन पीपल्स राइट्स ऑल्सो, कि विच राइट्स विल एंजॉय बाय द पीपल। तो क्लियर, थर्ड पॉइंट यू विल राइट डाउन लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट व्हाट कैन यू राइट डाउन हियर, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. So you will write down according to 5 marks question that asks what is constitution, why do we need a constitution. Firstly you will write down the definition, what do we mean by constitution, and after that you will mention why do we need a constitution. I hope clear that point. Now we will discuss the second questions. Describe the steps taken to form the constituent assembly. क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हमें रिक्वायर हुई। तो बट फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल यू राइट डाउन हियर, इट मींस द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना बाय द एक असेंबली, बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो असेंबली बनाई दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर, यानी कि फॉर मेकिंग या फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस वन असेंबली फॉर्म्ड, और दैट असेंबली फॉर्म्ड किससे बनेगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर, सेकंड पॉइंट इसको आपको इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय द इलेक्शंस, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाएगी, इसके लिए इलेक्शंस हेल्ड हुए जुलाई 1946, यानी कि जो असेंबली बनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी, और इसके लिए इलेक्शंस कब करवाए गए, जुलाई 1946 में। सेकंड पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। दैट व्हाट वाज, इसमें आप लिख सकते हो द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर। अब इसमें इलेक्शंस तो कब हुए, जुलाई 1946, बट इसके लिए मीटिंग कब हुई, फर्स्ट दिसंबर 1946। ये कई क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं बेटा शॉर्ट के हिसाब से भी इसमें, कि ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। तो आप कह रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय द इलेक्शंस हेल्ड इन जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो दिसंबर 1946। क्लियर अप टू हियर। नाउ नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट होल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन मेंबर्स उसमें कितने थे, 299, वैसे तो 389 थे टोटल। जब पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद कितने बच गए, 299 ने मतलब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया। क्लियर, अब ये क्वेश्चंस अब फिर बन रहा है इसी में कि द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर, इसमें आएगा 26 नवंबर 1949 अडॉप्टेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार कर दिया, 26 नवंबर 1949 को, पर फोर्स कब किया गया, हमने इसको कब लागू किया गया, बट प्रैक्टिकली इट कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1950। अडॉप्टेड तो कर लिया गया, पर इसको फोर्स में कब लाया, 1950 में। क्यों हमने वेट किया ना, 26 नवंबर 1940 को रेडी हो चुका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी हमने 1950 तक क्यों वेट किया, वो भी हमने 26 जनवरी को अडॉप्ट किया है। 26 जनवरी क्यों, टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर, इसलिए यानी कि 26 जनवरी को हमने अडॉप्ट किया 26, तो दैट्स व्हाई टू मार्क, यानी कि इस दिन को हम यादगार बनाने के लिए रिपब्लिक डे कब मनाते हैं बेटा, 26 जनवरी को। और इसके पीछे भी एक इंसिडेंट है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस सेशन में ये डिसीजन लिया गया था, फर्स्ट टाइम वी विल सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे फॉर आवर कंट्री, यानी कि ब्रिटिशर्स से अब हमें आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो लाहौर कांग्रेस सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंस डे। तो उस दिन को भी यादगार बनाने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी डेट
सोच के रखा कि हम इस दिन अडॉप्ट करेंगे इसको, मतलब अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन इसको प्रैक्टिकली फोर्स कब लाएंगे, लागू कब करेंगे, इसलिए 26 जनवरी को चूज किया गया। और वो कौन सा, ऑटोमेटिकली 26 जनवरी है तो ईयर चेंज हो गया 1950। क्लियर। तो आप इसमें सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में क्या क्या लगे। क्लियर बेटा। तो यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इट केम इनटू फोर्स ऑन, आप कह सकते हो, वांटेड टू गिव इंपोर्टेंस 26 जनवरी एज जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। जो मैंने आपको बताया था कौन से ईयर का इंसिडेंट है, 1930। नाउ हु इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे यहाँ पे 565 के आसपास, उनको इंटीग्रेटेड, उनको एक करने का काम, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन छोड़ दिया आइदर मर्ज इन पाकिस्तान और इन इंडिया, या तो आप पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ या तो आप उनके साथ चले जाओ, मिक्स हो जाओ, या हमारे साथ। अगर ये सारे प्रिंसली स्टेट वहां मिक्स होते तो हमारी कंट्री का अलग ही एक मैप होता। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को एक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने निभाई हमारी कंट्री में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दैट्स वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हु फर्स्टली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी कि कंट्री के लिए सबसे पहले ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया किसने किया, 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने। क्लियर। ये क्वेश्चन है, हु फर्स्टली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू एंड अदर 8 कांग्रेस लीडर्स। तो इट मीन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात चली, तो मैं विच पॉलिटिकल पार्टी वाज रूलिंग देयर, कांग्रेस। क्लियर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप ये भी ऐड कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस में कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर। हाउ मेनी ड्राफ्ट्स अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने चेंजेस किए गए, हमने कितने ड्राफ्ट्स बने इसके लिए, मतलब अमेंडमेंट्स का अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी अमेंडमेंट्स डन, 2000। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स डन, अप्रोक्सीमेटली 2000 अमेंडमेंट्स। और ड्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ड्राफ्ट क्या, ए प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग, फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द पार्टीज मैनिफेस्टोस, कि क्या होगा, कैसे पॉलिसीज बनेंगी। तो उसके लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। क्लियर। और हाउ मच टाइम वाज टेकन टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अबाउट 114 डेज पर डिस्कशन हुआ, मतलब ये जो बना 114 डेज, एंड स्प्रेड ओवर 3 years वर टेकन टू, और अप्रोक्सीमेटली कितने ईयर्स लगे, 3 years। और अगर हम इसको रियली कहें कि एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा, तो यानी कि 2 years 11 months 18 days। ये अगर कॉम्पिटिशन में पूछ लेते हैं बेटा एग्जैक्ट टाइम कि हाउ मच टाइम वाज टेकन टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी बुक में दिया कि अप्रोक्सीमेटली 114 डेज लगे, यानी कि 114 डेज में डिस्कशन हुआ और उसको बनने में कितने साल लगे, 3 years अप्रोक्सीमेटली। फिर एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा बेटा, 2 years 11 months एंड 18 days। देखो बेटा इसमें भी कंफ्यूज मत होना आपका, ये फिर मैं बता दूं, जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है अडोप्ट, यानी कि बनकर तैयार हो गया, हमने किया कि कौन सी, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, बट केम इनटू फोर्स ऑन, पर उसको हमने प्रैक्टिकली कब लागू करवाया, 26 जनवरी 1950 को, जो मैंने आपको लाहौर कांग्रेचुलेशन वाला इंसिडेंट बताया। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स क्या होती हैं, किनको बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स प्रोवाइडेड द रीजंस बिहाइंड एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, दे आर यूज्ड टू, वी कैन से दैट, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस। और इनका क्या, व्हेन एवरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर यूज किए गए, प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स बोला गया उनको क्या किया गया, was recorded and preserved these referred as the constituent assembly debate। हर वर्ड्स को जो बोला गया या जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें पेश किए गए उन सबको संभाल कर प्रिजर्व किया गया, सेफ रखा गया, और वो किस नाम से फेमस हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स।
नेम द इंडियन लीडर्स हु यूज्ड टू राइट फॉर द मैगजीन्स यंग इंडिया इन 1931। ये पूछ लेते कि ये मैगजीन यंग इंडिया किसने लिखी 1931 में। हु यूज्ड टू राइट फॉर द मैगजीन्स यंग इंडिया, तो व्हाट इज द आंसर? M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। व्हाट इज प्रेम्बल? कि प्रेम्बल क्या है बेटा? ए कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे स्टार्ट होगा? प्रेम्बल से। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट, एक छोटी स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, उसके अंदर क्या दिया हो? इट्स बेसिक वैल्यूज इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए, किससे स्टार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम्बल से। और प्रेम्बल का मतलब क्या है? शॉर्ट स्टेटमेंट। शॉर्ट स्टेटमेंट है ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, जिससे हमारी कंट्री का क्या स्टार्ट हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये है जो हमने प्रेम्बल जो वर्ड लिया है, ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया बेटा? यूएस से, अमेरिका से, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन किससे स्टार्ट होता है? प्रेम्बल से। तो वहीं से ये हमने इंस्पायर होकर ये वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी किससे? शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरू होगा, एक प्रेम्बल से। शॉर्ट स्टेटमेंट है जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या दिए? उसके बेसिक वैल्यूज, कि हम ये पॉइंट्स इसके अंदर कवर करेंगे। क्लियर बेटा? ये भी एग्जैक्ट मैंने आपको बताया कि हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रोक्सीमेटली 2 years, यानी कि एग्जैक्ट, ये तो अप्रोक्सीमेटली है 3 years, तो 2 years 11 months and 18 days, यानी कि 3 years में कितने दिन रहे? 18 days का आगे यानी 12 days, तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देते हैं? 3 years। क्लियर? नेम द इंडियन लीडर्स हु यूज्ड टू राइट फॉर द मैगजीन्स यंग इंडिया इन 1931, M.K. गांधी। व्हाट इज प्रेम्बल? ये मैंने डेफिनेशन बता दी। किस कंट्री से हमने इंस्पायर होकर इसको ऐड किया बेटा? यूएसए से। व्हाट डज सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मीन? जो हमारे प्रेम्बल में जो वर्ड दिए हैं मेन, उसका ही मैंने लिखा बेटा यहाँ पे, सोवर्जिन। इट मीन्स पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजन, यानी कि अब हमारी कंट्री के लोगों को सुप्रीम राइट है टू टेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। हमारी कंट्री के जो भी हमारे आंतरिक मामले या जो फॉरेन मैटर है, हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। इट मीन्स नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट, हमारे ऊपर दे कैन नॉट इम्पोज कि नहीं आपको तब ऐसे चलना है। बट बिफोर द इंडिपेंडेंस हु वर डिक्टेटिंग and who were framing all the rules and regulation for us? Britishers. But now sovereignty means now people are have the free to follow, यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोगों को? क्या फ्री में? people have to follow, है ना? have the supreme right to make decisions on internal and external matters. It means no external powers can dictate the government of India, यानी कि कोई एक्सटर्नल पावर आकर अब हमें डिक्टेट नहीं कर सकती, हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती है, हमें ऑर्डर नहीं थोप सकती, हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती है। डेमोक्रेटिक का आपको पता ही है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हियर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब ये है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब है पीपल्स आर इलेक्टेड बाय द, सॉरी, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उसी के द्वारा चूज कर रहे हैं हम लोग। और इसीलिए लोगों को यहाँ पर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ये पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या है? सभी को वोटिंग राइट्स हैं। Those who got the age of 18 years, यानी कि आप अमीर हैं तो आपको मिलेंगे, आप गरीब है तो आपको नहीं मिलेंगे, आप पढ़े लिखे तो आपको मिलेंगे, आप अनएजुकेटेड है तो आपको नहीं मिलेंगे। डेमोक्रेटिक राइट्स सभी को मिले हुए हैं। तो इट मीन्स what can we say that here? डेमोक्रेटिक का क्लियर, एंड इलेक्ट their rulers and hold them accountable। तो जो इलेक्टेड रूलर्स है वो हमारे लिए आंसरेबल हैं कि अगर कोई प्रोग्राम पॉलिसीज नहीं बना रहे तो हम उनको बोल सकते हैं कि वाई आर यू नॉट डूइंग दैट वर्क, तो यानी कि दे विल गिव रिप्लाई। और रिपब्लिक मीन्स का मतलब हियर लीडर्स आर इलेक्टेड। हियर लीडर यानी कि रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता है? इलेक्टेड पर्सन, नॉट ए हेरिडिटरी रूलर। यानी कि हेरिडिटरी रूलर नहीं है कि एक उसके मरने के बाद उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा, नो। यानी कि क्या है? इलेक्टेड पर्सन होगा जो हमारी कंट्री का हेड होगा, नॉट ए हेरिडिटरी रूलर। दीज आर द बेसिक terms we have discussed in the preamble. Now, who was the chairman of the drafting committee? कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके चेयरपर्सन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, ठीक है बेटा।
और बीच पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड द असेंबली, मैंने आपको बताया था द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म 1885। और सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए किसने डिमांड की थी कि ड्राफ्टिंग मतलब ये बनना चाहिए, हु फर्स्टली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इसमें आप क्या लिख देंगे, मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafting a constitution for India. So dear students, we have discussed the main questions and answer, because whole question and answers we cannot discuss in one period topic. So you will learn and write these question and answer and other question and answer. Firstly, what will you do, beta? Read the chapter first and second properly. What is democracy? Why democracy? And after that, I have discussed in the previous video also, you will learn and write these question and answer. Same after that you will read the chapter constitutional design. Now बेटा आपको अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना, अब की बार आपके एग्जाम में सिर्फ ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा. क्लियर? तो दीज आर द मेन क्वेश्चन एंड आंसर वी हैव डिस्कस हियर. मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है. व्हाट इज ये 5 मार्क्स में आ सकता है. डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है बेटा, आप कर सकते हैं. फिर हु इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट एंड हु फर्स्टली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ मेनी ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, and how much time was taken to complete the constituent assembly of India, and what are constituent assembly debates, and name the Indian leaders who used to write for the magazines Young India in 1931. What is preamble? What do you mean by sovereign, republic and democratic? And last, who was the chairman of the drafting committee? I hope you understand in the proper way. We will meet in the next video. Thank you.